ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਥਿਆਰ, ਵੈਪਨ, ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਪਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਕੋ ਨਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਟੈਂਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਵੈਪਨ ਹੋਣ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਗੀਰ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੈਪਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ तरीके ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ये सर इसका नाम है 155 mm सारंगन सिस्टम है। ये गन 2 गन को मिला के बनाया गया है, जिसमें आप बैरल देख रहे हैं ये बोफोर्स से मिलता जुलता है। नीचे आप देख रहे हैं ये 130 mm गन जो रशियन गन थी उसको बना के, दोनों को मिला के ये गन इंडिया ने बनाया है। इसका जो रेंज है 38.5 किलोमीटर है और इसको इस्तेमाल करने के लिए आप देख रहे हो यहाँ पे कोई साइटिंग सिस्टम लगा हुआ है जिससे हम इसको ले करते हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस के लिए। साथ ही ये आप देख रहे हो पावर रैमर है, ये सेमी ऑटोमेटेड है। लोड करने के लिए एक पावर रैमर दिया गया है जो कि नाइट्रोजन गैस सिलेंडर की मदद से उसको सेल को रैम किया जाता है। एक बार च एक शेल चलेगा और कितने शेल जड़े है वो चलाए जा सकते? ये 1 मिनट में 4 से 5 हम राउंड फायर कर सकते हैं। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰ, इसका क्या नाम है और किस तरह से ये काम करता है? ये गन एंटी एयरक्राफ्ट गन है और ये गन मेड इन स्वीडन है। मेड इन स्वीडन? स्वीडन है ये गन। और इस गन के द्वारा हम हमारी जो दुश्मन के जहाज हैं उनको डिस्टॉर्ट करने के काम आता है। इस गन का मैक्सिमम रेंज हवा के अंदर 3.5 किलोमीटर है। बेसिकली हम इसको रडार के साथ इस्तेमाल करते हैं जो 20 किलोमीटर दूर से टारगेट को डिटेक्ट करता है। तो इसका इस्तेमाल हुआ है किसी जगह? 1971 वार के अंदर पाकिस्तान के दुश्मन के जहाजों को गिराने के बाद इस एयर डिफेंस को ज्यादा तवज्जो मिली है और तब से हमारे देश के अंदर ये L70 गन को इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, इसका की नाम है, किस तरीके नाल इस्तेमाल होंगे? सर ये इसका पूरा नाम ZSU 23 mm 4v1 सिल्का गन माउंट है। एक एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है सर, जो कि दुश्मन के जंगी जहाज के विरुद्ध में इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी प्रोजेक्टाइल जो हवा में उड़ रही है उसको ये ट्रैक कर सकता है। 20 किलोमीटर इसकी रेंज है सर, 17.7 किलोमीटर इसकी ट्रैकिंग रेंज है और 2.5 किलोमीटर तक इफेक्टिव फायर कर सकता है सर। लड़ाई में हर जगह डिप्लॉयमेंट में, कारगिल के वार में के टाइम में भी डिप्लॉयमेंट हुआ था, उससे पहले भी डिप्लॉयमेंट हुए हैं सर। और हमारे पास विंटेज इसकी 1973 के बाद आने में शुरू हुई है सर। 1973 के बाद आने शुरू हुई है, टोटल 1986 तक इसकी विंटेज आई हुई है हमारे पास। अभी इसको हमने अपग्रेड भी कर दिया है सर। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਝ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਫੈਸਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ तमाम ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਐਂਡ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਟੈਂਕ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ कि पहुंचा है। ये लद्दाख की फोटो है इसमें। ये लद्दाख में 19,000 फीट पे भी ये ऑपरेट हुआ है और सक्सेसफुल है, बिल्कुल 100% सक्सेसफुल। इसको हमने इस्तेमाल किया। ये हमने, हमारी फोटो है जो है, ये हमारी फोटो है। ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ वर्ल्ड के टॉपेस्ट जो हैं, हाईएस्ट, उनमें ये ऑपरेट हो गया है। सियाचिन ग्लेशियर तक ये ऑपरेट हो रहा है। सियाचिन ग्लेशियर तक? सर बिल्कुल, सियाचिन ग्लेशियर तक ये ऑपरेट हुआ है और अच्छा 100% सक्सेसफुल हुआ है सर। ये ਇਸ ਦਾ weight ਰੇਂਜ ਵੀ ਲਿਖੀ, 14 ਟਨ weight ਹੈ, ਰੇਂਜ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲਿਖੀ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ कि इंडिया की पावर क्या है हमारी। पाकिस्तान हमारे को बोलता है, गादर धमकी देता है, तो पाकिस्तान को समझ में आए कि ये चीज क्या है। ऐसा कुछ नहीं है सर। पाकिस्तान को इतने मजबूत वेपन है उनके पास भी, लेकिन इतना ये नहीं है कि हम किसी भी एंगल में पाकिस्तान से कम नहीं है सर। ये
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵੈਪਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਨ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਗਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ दिखाई जा रही हैं। एग्जीबिशन लगी हुई है, ये कैसा लग रहा है? आप बताएं, जो अभी आप आर्मी के तमाम हथियार देख रहे हैं। अभी तक तो मैंने सिर्फ गेम में देखे थे, आज रियल लाइफ में देख रहा हूँ, बहुत हैरानी हो रही है। बड़ी ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਨੇ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਬਰੀਫਲੀ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ। ब्रीफली समझा रहे हैं, सारा कुछ थॉरली बता रहे हैं। बच्चा भी पूछ रहा है, क्वेरीज हैं, उधर भी सब नए टेक्नोलॉजी जो हमारी मिलिट्री आर्मी यूज कर रही है, बहुत ही मतलब लग रहा है कि ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है कि इस तरह की एग्जीबिशन होनी चाहिए, इस तरह का फेस्ट होना चाहिए आर्मी के। डेफिनेटली होना चाहिए, बच्चों को जरूर इसमें ऐसे फेस्ट में लेके आना चाहिए, पेरेंट्स को भी, और प्राउड फील होता है बहुत। पहले पता था इस तरह के वेपन के बारे में, हथियारों के बारे में सुना था, पढ़ा था कहीं, या अभी प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं? नहीं, पहले भी हम ऐसे ही जगहों पर गए हैं, तो दिस इज अ सेकंड और थर्ड टाइम कि आई विजिटेड सच अ प्लेस। इट्स वेरी इंट्रीगिंग, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी नॉलेजेबल। आर्मी में जाना चाहते हैं? यस आप जाना चाहते हैं? यस सर। तो किस तरह के वेपन आपको लगे? बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि अमेरिका, यूके के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन अब इस तरह के बड़े आधुनिक वेपन जो हैं वो यहाँ पर हैं। सर, जैसे हमने देखा है अमेरिका वगैरह में काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज है, तो इंडिया भी वैसे डेवलप कर रहा है। इंडिया ने काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपने वेपन्स को अभी एडवांस करा हुआ है, जिससे हमें डिफेंस में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। यहाँ आकर सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी कि ये प्रैक्टिकल, क्योंकि किताबों में देखते हैं या इंटरनेट पे देखते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली जब ये आर्मी के तमाम ऑफिसर समझाते हैं तो उससे ज्यादा पता चलता है? कैसे सर, उनसे ज्यादा पता लगता है, और एक तो हम साथ में देख रहे हैं, और हम टैंक्स वगैरह में भी अंदर जाकर गए। हमें अगर कोई समझा रहा है और हम जाकर देख रहे हैं, हम खुद यूज कर रहे हैं। हम जैसे टैंक के अंदर गए तो फिर उन्होंने ये बताया इस साइड करना है, रोटेट वगैरह वगैरह, तब वो ज्यादा पता लग रहा था, वो हमारे दिमाग में बात रहेगी फिर हमेशा। आप बड़े होकर आर्मी में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फौरन में जाना चाहते हैं? सर, हम सारे आर्मी एस्पिरेंट्स हैं, और मतलब हमारा गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट है, वो हमें आर्म्ड फोर्सेस के लिए प्रिपेयर करवाते हैं। हम आर्मी और एयरफोर्स एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, कुछ टारगेट लेके चलें कि इस ऑफिसर तक हमने, इस पोजीशन तक हमने पहुंचना है, इस तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत सारी इनमें रैंक भी होते हैं, तो कोई टारगेट लेके चलें? वो तो सर सीडीएस वगैरह देना है, एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन करना है, उसके बाद फिर अच्छा काम करेंगे तो प्रमोशन। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਇਨਲਾਈਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਫੌਜ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਝੰਡਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਆਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੀਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸਿਆਚੀਨ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 100-150 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੋਲਜਰਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੂਬਸੂਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰ, 2017 'ਚ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਰ,
ਸਰ 2017 ਚ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ 2022 ਚ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਖਰੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜੇਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਤਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਫੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਵੈਪਨ, ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ? सर ये 7.62 नेगव LMG है और ये इजराइल देश का बना हुआ है। ये एक सेमी ऑटो और फुली ऑटोमेटिक वेपन है। इसका कारगर रेंज है 800 मीटर और ये 3 मोड में काम करती है। इसके मोड है सेफ, सेमी ऑटो और फुली ऑटो, और इसका साइक्लिक रेट ऑफ फायर 600 से 800 राउंड पर मिनट है, और इसका मजल वेलोसिटी है जो 800 मीटर पर सेकंड है। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਇਹ ਵੈਪਨ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਵ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਔਰ ਐਕੂਰੇਟ ਐਂਡ ਰੁਕੈਲ ਕਮ ਵਾਲਾ ਫਾਇਰ ਹੈ ਇਸका। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਆਰਮੀ ਚ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੈਪਨ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, UK ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੈਪਨ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ? इसका नाम सर 5.56 mm इंसास राइफल है। ये भारत देश का बना हुआ हथियार है। ये एक जवान का जातीय हथियार है, पर्सनल वेपन जिसको बोलते हैं हम लोग। इसके साथ सिंगल शॉट और 3 राउंड ब्रस्ट फायर किया जा सकता है। इस हथियार के साथ दिन और रात के समय फायर करने के लिए अलग अलग प्रकार की साइटें दी गई, जैसे ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? हाँ जी सर, 300 मीटर के ऊपर ये डिटेक्ट करेगा और 200 मीटर दूरी के ऊपर क्या करेगा, रिकॉग्नाइज कर देगा बिल्कुल की ये चीज है। और ये ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ? हाँ जी, बाकी ये दिन के समय फायर करने के लिए। और इसका इस्तेमाल किस लिए? इसका इस्तेमाल हम लोग दुश्मन की पैदल सेना या कोई दुश्मन किसी आड़ के पीछे छिप गया है तो उसको बर्बाद करने के लिए करते हैं। इसका रेंज भी 400 मीटर है और इसको इंसास राइफल के ऊपर फिट करके फायर किया जाता है। इसके साथ राइफल और ये दोनों एक साथ एक समय पर फायर कर सकते हैं। ठीक है। नवी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, एक होर बड़ा खूबसूरत वेपन है, इसका की नाम है? इसका नाम सिग्स और असल्ट राइफल है। ये USA का बना हुआ वेपन है। इसकी रेंज 500 मीटर है। ये अभी लेटेस्ट वेपन आया है भारतीय सेना में, अभी अभी इसको शामिल किया गया है। और इसके जो मैगजीन कैपेसिटी है इसमें 20 राउंड आते हैं। और ये सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक हथियार है। ये अभी इंसास राइफल की रिप्लेसमेंट में इसी को दिया गया है। हाँ, ये अमेरिका तो वेपन आया, किस तरीके नाल इस्तेमाल हुंदा है इस दे बारे जानकारी ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ है 9mm सब मशीन गन मशीन पिस्टल। यह मेड इन स्विट्जरलैंड। यह CQB रोल में इस्तेमाल होने वाला हथियार है। इसके साथ 2 प्रकार के मैगजीन है, 15 राउंड वाला मैगजीन, 30 राउंड वाला मैगजीन। इसको फायर करने के लिए इसके चेंज लीवर के 3 मोड हैं, सेफ, सेमी ऑटोमेटिक और MBRF। सेमी ऑटोमेटिक करने पर इसका रेट ऑफ फायर 1100 राउंड पर मिनट। रात को फायर करने के लिए या CICT के मोड में रूम को सर्च करने के लिए इसके साथ टेलीस्कोप लेजर लाइट दी गई है, जो 3 मोड में है, लेजर मोड, LED मोड, LED प्लस लेजर मोड। साउंड को कम करने के लिए और फ्लैश को कम करने के लिए इसके साथ साउंड सप्रेसर दिया गया है। ठीक है। ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਪਨ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। AK-47 ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ AK-47 ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ AK-58 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 47 ਤੇ 58 ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਸਰ 47 ਦੇ ਤੇ 58 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਬੱਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਕੈਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਚੇਂਜ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਕੈਚ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਫਲੈਸ਼ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਫਲੈਸ਼ ਉਹਦਾ ਸਭ। ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਐਮਨੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੇਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਸੇਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦਾ।
ਇਹ ਸਰ ਵੈਪਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੈਪਨ ਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਵੈਪਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ 40 ਮਲਟੀ ਸ਼ਾਟ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੇਂਜ 350 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਔਕਲਡ ਆਈ ਗਨ ਸਾਈਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ? सर ये 5.56 इंसास लाइट मशीन गन है और ये इंडियन मेड है। इंडियन मेक इन इंडिया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल इंडियन मेड है। और इस हथियार ਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੋ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਯੂਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਟੀ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਰੋਲ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 700 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਈ ਪਾਰਟ ਸ਼ੂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪੈਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਾਇਰਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ? 51 मोटर हैगा और ये इंडिया द्वारा बनाया गया हैगा। इंडिया मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया है। और ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਇਨ ਰਸ਼ੀਆ, ਮੇਕ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇਖੇ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਪਨ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵੈਪਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਤੇ ਛੁਪ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 9 mm कार्बन मशीन गन, ये इंडियन आर्मी का बहुत ही पुराना वेपन है और इसका कारगर रेंज 30 मीटर है। ये CQB रोल के में इस्तेमाल करने वाला हथियार है। गुत्थम गुत्था जो लड़ाई होती है उसमें ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੈਪਨ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? फिल्म च अगर तुम ज्यादातर देखी होगी इनू MMG बोलते हैं ज्यादातर। ये वेपन बेल्जियम का बना हुआ है। 1962 में इसे इंडिया ने खरीदा। 1971 और 1999 में जो युद्ध हुआ था उसमें इस गन ने बहुत ही ज्यादा दुश्मन के ऊपर दुश्मन का नुकसान किया। यह वेपन तकरीबन 1800 मीटर तक दुश्मन को मार डालने की काबिलियत रखता है। इस वेपन की मेन खासियत है कि इसका जो फायर पावर है 900 से 1000 राउंड पर मिनट फायर करता है। इसके साथ ये साइड जो कि CSWS दी गई है, ये हाल ही में इसको लॉन्च किया गया क्योंकि रात को फायर करने की इसके साथ कोई साइड नहीं थी, तो अभी ये साइड नाइट साइड आ गई जिसका रेंज है 1200 मीटर। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ? रशिया ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ तो 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ इंडियन आर्मी 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ डिटेल में जानकारी दे पाएंगे? सर ये एक एंटी टैंक वेपन है। वैसे तो इंडिया आर्मी में सर 1985 में ही एंटी टैंक वेपन आ गए थे, पर उनकी रेंज कम थी, 2 किलोमीटर थी। अभी ये हमारे पास 4 किलोमीटर रेंज वाला एंटी टैंक वेपन है। किसी भी हथियार को सर जब हम फायर करते हैं, जो बुलेट जब बैरल से निकल जाती है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, लेकिन ये मिसाइल है, ये गाइडेड है। इसको हम लॉन्च या फायर करने के बाद भी जब तक हम टारगेट को या टैंक को बर्बाद ना कर सकें तब तक हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। इसको राइट ट्रैकिंग कर सकते हैं, लेफ्ट ट्रैक कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। रात को फायर करने के लिए सर इसके साथ ये एक PI साइड दी गई है जिसकी बहुत ही अच्छी क्लैरिटी है, बल्कि रात को भी दिन की तरह दिखाती है। ठीक है सर, थैंक यू। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ अहम? इसका नाम 84 mm रॉकेट लॉन्चर मार्क 3 है। ये भारतीय सेना में 2002 में शामिल किया गया। अभी इसका लेटेस्ट वर्जन मार्क 4 भी आ चुका है जो कि 2018 में इंडिया में लॉन्च किया गया है। उसको ट्रायल बेसिस पे अभी काम चल रहा है। इसका रेंज जो है अलग अलग लिहाज से एक से जवान कैरी और फायर कर सकता है, लेकिन भरने और खाली करने के लिए नंबर 2 की जरूरत पड़ती है। इसके साथ में 9 प्रकार का कॉम्बैट एमिनिशन, मतलब किसी चीज को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये है HAT 751। इसका इस्तेमाल दुश्मन के टैंक जाने के मेन बैटल टैंक जैसे पाकिस्तान का है अल खालिद, उसके बरखिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इसको वॉर हेड एमिनिशन भी बोला जाता है। इसके बीच में डबल कॉपर कोन दिया गया है जो कि ERA पैनल में घुसाव करते हुए टैंक को न्यूट्रलाइज करता है। इसी के साथ में HAT 551, इसका इस्तेमाल भी टैंक के बरखिलाफ भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये विदाउट ERA पैनल के, जिसमें ERA पैनल नहीं लगा होता उसके बरखिलाफ इस्तेमाल, क्योंकि इसका पेनिट्रेशन 350 mm है। और ये है स्मोक राउंड। इसका इस्तेमाल धुआं देने के लिए किया जाता है। इसका मैक्सिमम रेंज है 1300 मीटर। धुआं देने का समय 2 मिनट और जो धुआं देने का पर्दा है वो 15 मीटर चौड़ाई, डिपेंड ऑन एयर। इसके साथ में एलिमिनेशन राउंड,
इसका इस्तेमाल दुश्मन इलाके में या अपने इलाके में रात के समय रोशनी के लिए किया जाता है। इसका मैक्सिमम रेंज है 2300 मीटर और इसका जो रोशनी देने का समय है वो 30 सेकंड है और रोशनी देने की ताकत 6,50,000 कैंडेला पावर और रोशनी देने का इलाका 400 से 500 मीटर डाया। इसी के साथ में HEAT DP इसका इस्तेमाल हाई एक्सप्लोजिव ड्यूल पर्पज नॉर्मल गाड़ियां और ह्यूमन टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इसको 2 मोड से इस्तेमाल किया जाता है, इंपैक्ट मोड और डिले मोड। यदि इंपैक्ट मोड में फायर करते हैं तो इस दौरान जैसे ही टारगेट के साथ टकराता है तो अपना काम शुरू कर देता है। यदि हम डिले में मोड में फायर करते हैं तो उस दौरान टारगेट में इंपैक्ट होने के बाद पेनिट्रेट करता है, 0.1 सेकंड के बाद ये क्या करता है, एक्टिवेट होता है, जो अंदर वाले ह्यूमन टारगेट है उसको बर्बाद करता है। ਤਾਂ ਇਹ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰਮੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਤੈਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਦੇ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।